Start with the name of Allah, who is great, kind, and the most merciful. Uh, my dear student, today this lecture for all of you, a simple guideline that how we can write a research proposal. Basically, what is the research proposal and what is the synopsis? These are two different names which we use as the term of research methodology. Research proposal or research work for submit for giving roadmap to the institution or to your supervisor, to your department, that on this particular topic we will have go and work over it. So after basic idea of a research proposal or synopsis, there are the parameter or guideline that how we can work over it. How we can work over it and how we can write. These are two other things. यहाँ पे हम अगर बात करें कि रिसर्च प्रपोजल लिखें कैसे, ये एक अलग तरीका है. रिसर्च प्रपोजल पे काम कैसे करें ताकि हम शुरू कहाँ से करें, फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट वर्क ऑन रिसर्च प्रपोजल. These are two other topics. So in this lecture we will complete both tasks. If we can start working on research proposal, we must have clear idea about the research techniques. We must well known about the basic ideas of research, and after that we have an idea that on which particular topic we are going to be working over it. Start from complete the task, finalize your topic. This is the first step for working over the research proposal or synopsis, that on which particular topic do you want to work over it. Suppose give an example for clear your concept. यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लें ताकि आप लोगों की का आइडिया क्लियर हो, तो वो कैसे होगा कि आपने फाइनल टॉपिक कर लिया कि मुझे जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट जर्नलिज्म, ऑनलाइन जर्नलिज्म, रेडियो टी प्रोडक्शन या किसी एक सब्जेक्ट में से भी कोई भी टॉपिक चुनी है. तो अगर मैंने यहाँ पे टॉपिक चुनी प्रिंट में से, अब प्रिंट में से यहाँ पे भी मैगजीन और न्यूज़पेपर्स हैं, और मैगजीन और न्यूज़पेपर में से भी मैंने फिर क्या किया, व्हाट आई हैव डू, आई हैव सिलेक्टेड न्यूज़पेपर. अब न्यूज़पेपर पे की टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं लिखूँगा न्यूज़पेपर गूगल स्कॉलर में जाके, और वहाँ पे देखूँगा कि न्यूज़पेपर पे कितनी टाइप की रिसर्च की हुई है. एक आइडिया क्लियर हो जाएगा वो रिसर्च पढ़ के. फिर मैं फाइनल करूँगा एक दो इंटरेस्टेड टॉपिक जो मुझे लगेंगे, मैं उनमें से उनके रिसर्च आर्टिकल पढ़ूंगा, और रिसर्च आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे ये बेसिक आइडिया होगा कि अब इसने काम कैसे किया है और इसने कौन सी डायरेक्शन दी है जिस पे हम काम कर सकते हैं. फिर हम उस पे काम करना शुरू कर देंगे. जब हम काम करना शुरू कर देंगे या उसकी छोड़ी हुई टॉपिक पे शुरू करेंगे, तो हमें ये आसानी होगी लिटरेचर रिव्यू करने में. लिटरेचर रिव्यू करने में ये आसानी इसलिए होगी कि जब हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, और लिटरेचर रिव्यू करने के बाद करने के लिए हमें मुख्तलिफ रिसर्च आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, और वही रिसर्च आर्टिकल हेल्पफुल होंगे ताकि हम आगे इन पे काम कर सकें. तो मैंने अपना रिसर्च जो है वो न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर कर दिया. अब उसने एक काम कर दिया यूएसए में, यूके या कहीं भी दुनिया के किसी भी ममालिक में, लेकिन मैं वही काम या रिप्लिकेट करूं तो अपने एरिया में कर सकता हूं, या मैं अपनी उसी से रिलेटेड एक टॉपिक करूँ. जैसे यहाँ पे मैंने एक टॉपिक फाइनल कर दिया है, student attitude towards newspaper reading, a case study of Shaping.
So this was that how we can start a work. अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट वर्क करने के लिए आई हैव कंप्लीट फर्स्ट टास्क टू फाइनलाइज द टॉपिक. अब टॉपिक फाइनलाइज हो गई. अब अंडरस्टैंड करने के लिए आई मस्ट go and read related topic for literature review. So after complete this second task, now it's time to be start another task, which is the how to write a research proposal. There are few guidelines for research proposal. A research proposal is a roadmap of my research, that how will I will complete my research. The first step is the introduction. Introduction is a basic intro of your topic, and you will share that share information, basic quantity of reading newspaper, and you must be give related intro information regarding newspaper and reading. Also show the some relationship between all these. This was introduction. Introduction को लिखने के लिए यहाँ पे अगर हम देखें कि introduction में आप रेफरेंस भी ऐड कर सकते हैं, कि अगर मैंने कोई रिसर्च रिपोर्ट इंक्लूड की है यहाँ पे कि हाउ मच रीडरशिप, हम उसका भी रेफरेंस दे सकते हैं, या किसी और की रिसर्च की हुई है उसकी हमने डेटा इंफॉर्मेशन या जो है उसमें से ली है, तो वो भी हम इंट्रोडक्शन में भी रख सकते हैं. तो इंट्रोडक्शन का सेकंड स्टेप होगा वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम. अब ये आपकी टॉपिक का दिस वाज द बैकबोन ऑफ योर टॉपिक, कि आप इसी टॉपिक में ये क्लियर करेंगे कि ये टॉपिक जो है वो आपने जो प्रॉब्लम फाइंड आउट किया है उसको एक्सप्लेन करना है, कि बेसिकली कौन सा प्रॉब्लम मुझे नज़र आया है और उसी प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्यूशन की तरफ या रिसर्च के ज़रिए मैं उसका कैसे जो है ना हल दे सकता हूँ. तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, दैट मीन्स यू मस्ट बी एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम विथ जस्टिफिकेशन. सो इसके बाद यू शुड बी शो द सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ योर स्टडी, दैट व्हाई आई एम डूइंग स्टडी ओवर इट, what required importance of this topic in current scenario or in current situation. तो ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम जब तक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम रिसर्च नहीं करेंगे तो रिसर्च ओरिएंटेड जो टॉपिक नहीं होगी तो हमारा प्रपोजल आई थिंक एक्सेप्ट नहीं भी किया जा सकता. तो इसलिए जब भी आप काम करो तो टॉपिक की इम्पोर्टेंस ज़रूर बताओ आपके पास कि इस वक्त भी इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है. और यहाँ पे उसके बाद आपको देने हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी, कि आपकी स्टडी के ऑब्जेक्टिव कौन से. यहाँ पे जैसे लिखे हुए हैं सम ऑब्जेक्टिव्स टू मेजर ओवरऑल एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स न्यूज़पेपर रीडिंग, एंड सब ऑब्जेक्टिव आल्सो गिवन हियर व्हिच आर 5. उसके आफ्टर दैट यू मस्ट बी इंक्लूड hypothesis or research question which will be tested through the your type of research and different techniques. तो आपको यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस दोनों भी दे सकते हैं और दोनों में से एक भी दे सकते हैं. ठीक है. तो नाउ इसके बाद हमारे सेकंड इंट्रोडक्शन के बाद आएगा लिटरेचर रिव्यू. As we have started our work from the literature review, which I have mentioned in my this video as well, कि हम literature review में जो है वो दूसरों के दिए हुए रेफरेंसेस और इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के ये इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि दुनिया में कितने लोगों ने इस पे काम किया है, तो उसमें से रेफरेंस देंगे. रेफरेंस देने का 2 तरीके हैं. आप किसी का भी रेफरेंस दे रहे हो तो उसमें से उसका रेफरेंस अगर आप पहले दे रहे हो बिफोर स्टार्टिंग योर रेफरेंस, जो हम डबल कोलन में जो है ना उसे ब्रेकआउट करते हैं, तो उसमें से आपको नाम देंगे और नाम के साथ ईयर ब्रैकेट में रखेंगे. अगर आप वो रेफरेंस लिखने से पहले आप उसका नाम दे रहे हैं
जो जिसका आप रेफरेंस उठा रहे हैं या जो ओरिजिन राइटर है, ये पहले दे रहे हैं तो ऐसे होगा। अगर आप लास्ट में वही चीज़ रख रहे हैं तो आपको दोनों ही उसका फर्स्ट नेम ऑफ राइटर एंड ईयर, आप दोनों को ही जो है वो ब्रैकेट में रखेंगे। लेकिन अगर आप पहले दे रहे हैं तो नाम बाहर होगा और ईयर ब्रैकेट में होगा। सो रेफरेंस ऐड करने के लिए ये टेक्निक्स आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आपका रेफरेंस जो है ना वो वैलिड हो। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अपना प्रपोजल बताएंगे कौन से रिसर्च मेथोलॉजी जिसे कहते हैं कि कौन से मेथड आप यूज़ करेंगे। मेथड यूज़ करने से पहले रिसर्च मेथोलॉजी में आपको सबसे पहले ये क्लियर करना होगा, यू मस्ट बी डिफाइन दैट टाइप ऑफ रिसर्च, कि आपकी रिसर्च कौन सी टाइप है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। यहाँ पे जो रिसर्च प्रपोजल का एग्जांपल दिया गया है वो मास मीडिया की रिसर्च में क्वांटिटेटिव रिसर्च का दिया गया। उसके बाद आपको ये देना होगा कि सैम्पलिंग डिज़ाइन हमने डिस्कस डिटेल में कर ली है, लेकिन सैम्पलिंग डिज़ाइन की सिंपल डेफिनेशन आपको यहाँ पे रखनी है कि सैम्पल डिज़ाइन होती क्या है और आप कहाँ से सैम्पलिंग लेंगे और कौन सी पॉपुलेशन होगी जहाँ से आप ये सैम्पलिंग उठाएंगे। उसके बाद आपको थर्ड टॉपिक पे ये बताना है कि आप डेटा कलेक्ट कहाँ से करेंगे और उससे मेजर कौन से सॉफ्टवेयर से करेंगे। तो यहाँ पे जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च आपकी है तो हम जो है ना डेटा कलेक्ट करने के लिए दो सोर्सेज ऑफ डेटा बताएंगे कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा यूज़ करेंगे। और प्राइमरी डेटा क्या होती है, वो प्राइमरी डेटा होती है जो हम खुद बनाए, और सेकेंडरी डेटा क्या होती है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट की गई है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिए गए हैं कि क्वेश्चनर इज प्राइमरी डेटा एंड लिटरेचर रिव्यू इज सेकेंडरी डेटा। तो मेजरमेंट के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो मोस्टली कॉमन सॉफ्टवेयर है, SPSS सॉफ्टवेयर, जो हेल्पफुल होगा हमारी डेटा को रिलायबिलिटी शो करने के लिए और उसकी वैलिडिटी शो करने के लिए। लेकिन उसके लिए भी आपको रेफरेंस सॉफ्टवेयर के लिए देना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रेफरेंस नहीं देंगे कि ये आपके रिलेटेड किसने ये ऑलरेडी काम किया है, तो हो सकता है कि आप न्यू काम कर रहे हैं और आपकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ना रहे। इसलिए आप जैसे यहाँ पे इसमें दिया गया है कि दिस स्टडी विल अडॉप्ट द अडल्ट सर्वे ऑफ रीडिंग, ASRA, अडल्ट सर्वे ऑफ रीडिंग, अरसा, जो सिम्थ ने 1999 में काम किया है और शाजिया अब्दुल करीम ने 2006 और 2007 में इसी टेक्निक्स पे काम किया है। तो इसलिए हमें इस तरह की जो है ना वो टेक्निक्स यूज़ करें। उसके बाद हमें ये क्लियर चीज़ें बतानी है कि हमें कौन से टेक्निक्स यूज़ करने हैं, कौन से हमें जो है ना वो टेक्निकल फार्मूलेज डेटा कलेक्ट और मेजर करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे भी वो भी आपको क्लियरली डिफाइन करने पड़ेंगे। यहाँ पे जैसे आपको फैक्टर एनालिसिस करना है, जो रिडक्शन मेथड होता है या फैक्टर एनालिसिस वो करना है, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस करना है अगर वो करना चाहें, मेजरमेंट करनी है आपको अगर हम मेजरमेंट करना चाहें तो, और कोरिलेशन को यूज़ करना चाहें तो कोरिलेशन कर सकते हैं, कोरम बेक अल्फा करना चाहें या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना चाहें। और इसके साथ साथ आप जो है वो सिंपल मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सब टेक्निक्स हैं, वो आप कितनी अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ योर टॉपिक, ये आप फाइनल करेंगे। नाउ इसके बाद आपको एक और अहम चीज़ यहाँ पे देनी पड़ेगी कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको अपनी थीसिस का जो स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस मस्ट बी गिवन इन योर प्रपोजल, कि आप स्ट्रक्चर जो देंगे थीसिस का, उसके चैप्टर्स जो 5 चैप्टर्स या मोस्ट ऑफ टाइम 5 to 6 चैप्टर होते हैं उनको आप डिज़ाइन करेंगे। जैसे पहला चैप्टर होगा आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर में आप कौन सी डिटेल देंगे वो आप अपने सुपरवाइजर के साथ, लेकिन पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का होगा। दूसरा चैप्टर आपका होगा लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू में आप ये सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे कि मैं लिटरेचर रिव्यू जब आप थीसिस लिखने जाएंगे। उसके बाद आपका ये लेक्चर आएगा रिसर्च मेथोलॉजी, जो आपने यहाँ पे मेथोलॉजी दी है वहाँ पे आप थीसिस में भी देंगे कि मैं
मेथोडोलॉजी दूंगा। फिर आपके डेटा एनालिसिस एंड डिस्कशन, जो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में टेक्निक्स दिए हैं उस पर आप जो काम करेंगे, वो जो टेबल्स और वो हैं वो सारी देनी पड़ेगी। और फिर चैप्टर होगा आपका कंक्लूजन, और कंक्लूजन में आप कंक्लूजन के साथ साथ और चीज़ें भी ऐड करेंगे कि कंक्लूजन के साथ आप सजेशन देंगे, सजेशन के बाद आप फर्दर स्टडी गाइडेंस देंगे, लिमिटेशन ऑफ स्टडी बताएंगे और ये सब चीज़ें। तो रिसर्च प्रपोजल कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे एक अज्यूम करेंगे कि मेरा फाइनल कंक्लूजन इस तरह इसका रिसर्च का हो सकता है। इट विल बी बेस्ड ऑन अजम्पशन, नॉट द फैक्ट एंड फिगर्स। एक अज्यूम करेंगे और लास्ट में आप यहाँ पे देंगे रेफरेंसेस, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं रेफरेंसेस के रेफरेंसेस दिए गए हैं कि आपने ये जो सारे लिटरेचर रिव्यू और इंट्रोडक्शन में रेफरेंस दिए हैं, वो रेफरेंस आपको इस तरह, ये APA स्टाइल है, आप अगर APA स्टाइल यूज़ करेंगे तो इस तरह के रेफरेंस बनाएंगे। और रेफरेंस बनाने के लिए आपको यहाँ पे ये रेफरेंस डिटेल है, आप रेफरेंस डिटेल में जाके एडिट इंसर्ट साइटेशन में ऐड करेंगे तो आपके यहाँ से आएंगे। और अगर न्यू ऐड करना चाहते हैं रेफरेंस तो यहाँ पे आपको न्यू सोर्स ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी। टाइप ऑफ बुक है, आपका आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल है, ऑथर का नाम है, टाइटल, ईयर, सिटी, पब्लिशर, ये लगा के ओके करेंगे तो आपका जो है ना वो रेफरेंस ऐड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर कोई जस्टिफिकेशन या कोई एक्सप्लेनेशन या कोई सवाल रहता है तो आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप और कमेंट के थ्रू गूगल क्लासरूम में। थैंक यू वेरी मच।